বর্ধমান স্টেশনে আরপিএফ অফিস ঘেরাও করল হিজড়েরা। পুলিশকে মারধর, পুলিশকে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরে বের করে উত্তম মধ্যম ধোলাই হিজড়া। তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে প্রায় ১০০ জন হিজড়ে। তাদের দাবি, আরপিএফ তাদের ওপর জুলুমবাজি করে বিনা কারণে কেস দেয় এবং তাদের কাছ থেকে টাকা তোলে। এই নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে হিজড়েরা বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ব্যুরো রিপোর্ট, দিনরাত স্টার নিউজ। আমাদের বন্ধ করে না তো আমাদের সুসাইড ছাড়া আমাদের কোনো পথ নাই। ওরা সবসময় আমাদের থেকে টাকা মার কেস চায়, কিছু কোনো চাইবে না, আমরা তো চেয়ে খাই, আমাদের মেয়েগুলো তো চেয়ে খায়। সব থেকে আগে তো আমি শুভযাত্রা জানাই মমতা ব্যানার্জিকে। দেখেন, আপনার থাকলে তো আমাদের এত অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের জন্য কিছু ভাবেন। কেন আমরা হচ্ছি নার না নারী, আমরা হচ্ছি সব থেকে বেকার কিন্নার হতে যাব। আমরা তো সমাজের মারা, আমরা তো সমাজের মারা, বাড়িতে মারা, তাহলে আমাদের তো আমরা চেয়ে খাই। আর ওনারা আরপিএফরা আমাদেরকে ধরবে, তারপরে আবার বলছে কি আমাদের 9টা অফিসার আছে, আমাদেরকে একটা করে বাইরে থেকে মিছে মিছে করে বলে কি আপনারা শোনেন না, একটা কথা বলছে, আপনি যা করবেন আমাদের জন্য একটু ভাবেন। আমরাও খুবই দুঃখী, কোথায় যাব। নমস্কার। করে দিয়েছে জিআরপিরা, খুব ভালো। জিআরপিরা কোনোদিন টর্চার করে না। আজকে 1 মাস থেকে আমরা খেতে পাচ্ছি না, হাঁটতে পাচ্ছি না, আমাদেরকে জিআরপিরা ডিস্টার্ব করে না কোনোদিন। জিআরপিরা কোনোদিন ডিস্টার্ব করে না আমাদেরকে। আমাদেরকে আরপিএফ শুধুমাত্র ধরছে, টর্চার করছে। এই মেয়েগুলোকে টর্চার করে ধরে নিয়ে একদম মারছে, কেসও নিতে, সব কিছুই নিচ্ছে। কি বলবো আমরা? দূরে থাক, দূরে থাক। আমাদের জিআরপিরা খুবই ভালো। জিআরপিদের জন্য আমরা শুভকামনা জানাই, জিআরপিদের জন্য শুভকামনা জানাই। আমরা এদিকে আমরা 100 জন আছি, আমাদেরকে আমাদেরকে সব সময় টর্চার করে আরপিএফরা। বলে না প্রতিদিন কেস দাও, প্রতিদিন কোথায় কেস পাবো, আমরা কেস পাবো। আমরা বলেছি মাসে দেবো, আমরা মাসে দেবো। আমাদের খুব ইজ্জত করে, আমাদের খুব সম্মান করে, আমাদেরকে কোনো অসুবিধা করলে ওরা আগে হাতিয়ে আসে। আমাদের বিপদ আপদে জিআরপি সাহেবরা, জিআরপি স্টাফরা আমাদের হেল্প করে, কিন্তু ওরা আমাদেরকে মারবে, ধরবে, আবার টাকা নেবে। এর বিচার চাই, এর বিচার চাই আমরা, এর বিচার চাই আমরা। बता चुकी हूँ। शुरू से ये बात हुआ जब हम बर्धमान में जब आए थे, है ना, पहले देखिए हम ऐसा थोड़ी है जो हम ट्रेन में मांगते बोल के हम छुप छुप के जाएंगे। अरे जैसे हम लोग ट्रेन मांगती हूँ बोल के ऐसा थोड़ी है जो हम लोग अपना घर भी जाओगे छुप छुप के जाएंगे। हम लोग देखिए रेलवे का टिकट है, बिना टिकट के सारा रेलवे में चलना अलाउ नहीं है। हम टिकट काट के रेल में चढ़ते, हमारे पास लगेज रहता है, बैग रहता है, उसके बाद भी हमको पकड़ के लेके आके बोलता है केस दो। अगर हमारे पास केस नहीं रहता है, बोला चलो अंदर में। 2 स्टाफ आरपीएफ स्टाफ हमारे साथ बलात्कार करके हमको छोड़ देता है, फिर बाद में बोलता है केस नहीं दोगे तो कोर्ट से ऐसा चिट्ठी लिखेगा, तुम जैसे कपड़ा पहन के घर में रहोगे ऐसे कपड़ा में तुमको उठा के लेके आएगा। तो हम सोचिए हमारा भी तो इज्जत है, कोई हम भी तो इंसान है। देखिए इतना कोविड के टाइम जो था, हम लोग सबको सब कुछ दिया हूँ, ठीक है, 2-2 रुपए भीख मांग के दी हूँ, जितना हम लोग से हेल्प करना होता उतना हेल्प करती हूँ। हमारा देखिए ये लोग बोल रहे हैं जो आप
ट्रेन में काम करना छोड़ दो, आप सिग्नल मांगना छोड़ दो। अभी आप बताइए, हमारा इतना तो एक टीम का 100 किन्नर है, अभी और भी 5 टीम का आएगा। इसलिए हम लोग आज जाके आरपीएफ के पास बैठी हूँ, वो हमारा नए लेके गई हूँ, जो हम लोग रेल में काम करना छोड़ देंगे, फिर आप हम लोग को 100 किन्नर को काम दीजिए। अभी क्या अभी हम लोग को हाँ, रेलवे के अधिकारी देखिए, हम लोग को तो उतना ये लोग ये नहीं करने देता, हम लोग को डरा के रखता है ये लोग। अगर हमारा जरूरत पड़े हम इन लोग के नाम पे थाने में केस करेंगे। और बर्धमान में ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले अच्छा चल रहा था। जब से ये इंश्योरेंस ऑफिसर जो बड़ा मतलब सरकार है, इंश्योरेंस सरकार जिसका टाइटल है सरकार, मैं फोटो दिखाई हूँ आप लोग को शायद, वो और आकांक्षा जब से बर्धमान में आए हैं तभी से ये लोग मतलब जीना हराम कर दिया। हम घर में रात के टाइम सोते हैं, हमको फोन करके क्या बोलते हैं पता है, आके केस दे के जाओ, नहीं तो हम लोग रिकॉर्डिंग है मेरे पास, एक सेकंड मेरे पास रिकॉर्डिंग है, केस दे के जाओ नहीं तो नहीं छोड़ेंगे आप लोग को। हम बोले हम कल ऐसा बात हुआ, हम इलेक्शन के टाइम कल देखिए, मैं तो एक भारतवर्ष का नागरिक, भारतवर्ष का मैं तो एक नागरिक हूँ, ठीक है ना, मेरा वोट देना मेरा काम है, सब वोट देने जाता है। कल इन लोग के चलते हमारा मतलब 100 जन में से 20 जन वोट देने नहीं जा पाया। कितना जन को पकड़ के रखा, कितना जन को दौड़ के रखा, कोई किसी को गाड़ी नहीं मिला, हम भी कल वोट नहीं दे पाए। देखिए फिर गलती मेरा यही न्याय है, जो मैं माननीय बंगाल की वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास रिक्वेस्ट करते, प्लीज आप कोई स्टेप ले, आप इन लोग के बारे में कुछ भी, हम लोग के बारे में थोड़ा कुछ सोचिए, और ये सब जो झंझट गलत काम हो रहा है ये सब हटाइए वेस्ट बंगाल से। हमारा वेस्ट बंगाल पूरा गंदा हो जा रहा है। वेस्ट बंगाल ऐसा नहीं था, हमारे भारतवर्ष में दुनिया में सिटी ऑफ जॉय वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही ऐसा शहर है जहाँ पे अपने इंसान अपने तरीके से जीता है, मगर वेस्ट बंगाल में ऐसा जीना ही नहीं पा रहे। देखिए कुछ दिन पहले की बात है, जब बर्धमान का जब टैंकी टूट गया था, जल टैंकी, हम ट्रेन से अपना घर से पूजा करके, हमारा घर में पूजा हुआ था, हम वहां से भंडारा हुआ था, हम वहां से आए, टैंकी टूट गया, सब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग का क्या ऐसा रुक रहे, हम लोग फिर बोला चलिए, हम लोग गाली दिए, हम लोग ऐसे बदन में टच अप क्यों कर रहे हो, लड़का होके लड़की को बुलाओ, वो लोग लड़की को नहीं बुलाते, डायरेक्ट बदन में टच करते, इंक्वायरी के बाहर। हम कोई टोटो में बैठने जा रहे, मतलब स्टेशन का बाहर, बोल रहे टोटो कोई लेके जाएगा इसका कांच तोड़ देंगे। हम लोग के लिए बेचारा, उनका भी पेट आरपीएफ लोग डंडा मार के उन लोग को भी टूट जाएगा। फिर मैं बर्धमान स्टेशन का सीमाना का बाहर जाके बोला, तुम्हारा रेलवे का जगह वहां तक था, ये म्यूनसिपलिटी का जगह है, यहाँ पे अभी आप आओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको मार के भेजेंगे। फिर हम आरपीएफ ऑफिस में बात करने के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं वहां पे गई थी, फिर मेरे को 2 थप्पड़ मारा, मेरा बाल पकड़ के सीसीटीवी जो कैमरा लगाया उसके सामने नहीं, जो 2 घर है उसका अंदर बुला के मुझे मारा है, बोला माधर चोट, मतलब बहुत गाली दिया हम लोग को। हम लोग और कितना सहूं, आज मान के चलिए हम लोग का घर में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई घर जा रहा है अर्जेंट में, है ना, टिकट करके, उसको अगर ऐसे दौड़ाएगा, उसके घर में कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम है, देखिए सबका दिमाग एक जैसा कभी कभी नहीं रहता है, किसी का दिमाग अलग भी रहता है, कोई कौन टेंशन में कौन रहता है किसी को पता नहीं। अगर जाएगा, अगर उसको ऐसे दौड़ाएगा, कुछ होएगा, अगर वो मर जाएगा, उसका अगर मतलब रेल में कट के अगर कुछ मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार लेगा या आरपीएफ लेगा, और उसका घर वाले को, हमारा मतलब उसका गुरु को। देखिए हम लोग का ऐसा होता है, आपका बेटा बाल बच्चा आपको कमा के बुढ़ापा में सहारा है, तो हमारा भी ऐसा है, जो हमारे गुरु राजगुरु नानगुरु है, सबको हम देखिए बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग ही उन लोग का सहारा है। तो हम लोग जब अगर हम लोग का कुछ हो जाएगा, उन लोग का सहारा होकर कौन रहेगा, सरकार रहेगा। महिला कम्युनिटी का जिसका आदमी मर जाता है उसको बेकार भत्ता का टाका मिल रहा है, लक्ष्मी का भंडार में पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हमारे कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम सह रही हूँ। फिर भी देखिए हमको इतना भी जरूरत नहीं, भगवान हमको, अल्लाह ताला हम कोई जात का नहीं है, हमको सुबह उठना है। मुख्यमंत्री ममता ব্যানার্জির কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট থাকলো, এখন ইলেকশনের টাইম চলছে, কালকে আমরা আমাদের হাওড়া পৌরসভাতে আমাদের ইলেকশন ছিল, আমরা ইলেকশন দিতে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ আমাদের কিছু ট্রান্স মেয়েরা ছিল যারা ইলেকশন দিতে যাচ্ছিল, তাদেরকে ওরা এবার গাড়ি পাবে না বলে তারা গাড়িতে উঠেছিল এক্সপ্রেসের টিকিট, তাদেরকে ধরে ওদেরকে ফোন করে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে ওনাকে ডাকুন, কেস দিন, রেকর্ডিংও আছে আমার কাছে, কেন হয় কেস আজকে ধরলো কালকে ধরলো, কেস লেখানো, আমরা যে লাগেজ নিয়ে আমরা যে বাড়িও যাচ্ছি, চাপ আসছে কেস দিতে হবে। এবার আপনি যখন কেসটা লিখছেন সিসিটিভি ক্যামেরার সামনে হবে না, ফাইনটা নেওয়া হবে সিসিটিভি ক্যামেরার পেছনে, বাট ফাইনটা করে নিচ্ছে। বাট আমরা যখন বলছি আমাদের যখন ট্রেন মানে মাসে একবার করে নিন, কিন্তু এমনকি রাত্রে ভিতরে ধরলে আমাদের সঙ্গে মানসিক টর্চার করা হচ্ছে। আজকে আমরা সবকিছু না সহ্য করতে পেরে তো কিন্নার সমাজ থেকে আজ সব দুঃখ নিয়ে এসেছি। শ্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যাবো না, আমাদের জন্ম মরণ সব এখানেই, আমরা কোথায় যাবো, আমরা নর না নারী, আমরা অর্ধ নারী, আমাদের সেই মহাভারত। আমার কথা হচ্ছে যদি হিজড়েদের মানে ট্রান্সজেন্ডারদের কাজ যদি ইনলিগেল হয়, তাহলে পুরো ভারতবর্ষ থেকে সবার
সবার ইনলিগেল কাজ বন্ধ করুন, সবার ইনলিগেল বন্ধ করুন। আমার নাম হচ্ছে পলক কিন্নার। ভিখারিদেরকে ভিক্ষা চাওয়ার বন্ধ করো।